Then, according to this, Saguna and Nirguna were being studied as per the different regions. One was the Alvars related to Vishnu, and second was the Nayanars related to Shiva in Tamil Nadu. Their attitude towards caste, their nature of women devotees, their relations with the state, ये भी हमने सब पढ़ लिया. After that, we came on to second, the Virashaiva tradition that was in Karnataka. उनका भी जितना रिलेशन था हमने पढ़ा about Virashaiva, what were Virashaiva, what were Lingayas, उनका हमने जो भी है पढ़ा. Then after that we came on to North India, यानी कि religious ferment in North India, in which next topic was new strands in the fabric Islamic traditions. From here, I think the chapter was 50% completed, after which the chapter switched over from Bhakti traditions to a new fabric, which was Islam, यानी कि Islamic traditions. After that, Islamic traditions फैलाने में दो तरह की communities का सबसे बड़ा रोल रहा. One were Arab merchants, second was Central Asian people, यानी कि which were entering into India through northwestern parts of the country. तो उनमें हमने क्या क्या पढ़ा? Faiths of Islamic rulers and subjects, treatment of Islamic rulers to their subjects. Then उसमें हमने इनके सारे laws पढ़े, जिम्मी, जिजिया, with different instances. After that, popular practice of Islam क्या थी वो हमने study किया with all the 6 norms, जिसमें कि ज़कात, रमजान, हज, वज ये सब आ जाते थे. Then coming on, names for the communities related. हमें अच्छी तरह पता है कि मुसलमान कभी एक शब्द था ही नहीं. The people belonging to Islam, I think, were named after the region in which they used to live. तुर्किश के थे तो तुर्किश तुरुस्का कहलाते थे, तजिकिस्तान के तजिक कहला. यानी कि ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ that actually Islam is not a religion. Actually Islam cannot be defined as a religion because actually Islam is a practice. सिर्फ एक practice है Islam. और practice में और religion में जमीन आसमान का फर्क होता है. Christianity को फिर भी आप religion कह सकते हैं. Islam is not a religion. वो अलग बात है the people belonging to Islam or the fundamentalist people या the fundamentalist entities related to Islam tries to prove that या tries to empower this fact that कि Islam से बड़ा धर्म तो इस दुनिया में है ही नहीं. तो वो उनका अपना philosophy है, but I think technically we say that. Technically we try to understand the philosophy of Islam, then actually Islam cannot be termed as a religion because the practices which were being adopted as per the conditions and necessities, and that were too excavated from different documents of different religions in the world. प्रैक्टिस ही होगी ना भाई. आपने दूसरे धर्मों को देखा, दूसरे धर्मों में जो चीजें करवा आप वही रहे हैं, बस अपने स्टाइल से करवा रहे हैं. कुछ चीज आप उल्टी करा रहे हैं, कुछ चीज आप चेंज करा रहे हैं, कुछ चीज आप मॉडिफाई कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट आप कह रहे हैं दैट दिस इज द ओरिजिनल थिंग विच वी हैव गॉट डायरेक्टली फ्रॉम गॉड. आई थिंक module 1 was here completed. Then after the completion of module 1, we came on to module 2. In module 2, I think we discussed the growth of Sufism. After understanding the growth of Sufism, first concept we understood about खानकाहस. खानकाहस के बाद हमने सिलसिलास पढ़ा. ठीक है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग खानकाहस एंड सिलसिलास, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू देम थे, जिसमें कि हमने सबसे पहले दरगाह पढ़ी. व्हाट इज दरगाह एंड दरगाह का यूज क्या होता था और दरगाह क्यों बनाई जाती थी और what was the importance of दरगाह या what was the existence of दरगाह या what was the जो भी है दरगाह में क्या चीजें की जाती थी so that दरगाह was so मतलब पॉपुलर एट दैट टाइम. उसके बाद दरगाह में जो हमने जियारत के बारे में पढ़ा, जियारत के बाद कव्वाली के बारे में हमने पढ़ा, अंडरस्टूड, जिसमें कि हमने बी शरिया बा शरिया दोनों पढ़े. आउटसाइड द खानकाहा हमने डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इस्लामिक पीपल जो इस्लामिक ट्रेडिशंस को आई थिंक अपनी तरफ से आई थिंक आप कह सकते हैं कि प्रमोट कराने में अपना योगदान निभाना पसंद करते थे. Those were of different communities, especially fundamentalist Islamic people were Qalandars, Madaris, Malangs and Hydris, etc. Then after that we straight away came on to one of the most important topics related to Islamic traditions, Islamic fabric, that was the Chishtis in the subcontinent. और मैं आपको पहले ही बता दूं that बुक के अंदर अगर हम चिश्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इट इज ग्लोरीफाइंग द चिश्तीज, बट रियल में अगर इनकी स्टोरीज आप देखेंगे तो आई थिंक जितना ग्लोरिफिकेशन इनका बुक के अंदर है उसी के जस्ट उल्टी इनकी कहानी है. अब उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा बिकॉज आई थिंक वी आर मूविंग एंड गोइंग अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली टू द बुक. तो बुक के हिसाब से इनको खुदा का बंदा बताया गया है और ऊपर वाले का बंदा बताया गया है, प्रमोटर ऑफ इस्लाम बताया गया है, प्रमोटर ऑफ ह्यूमैनिटी बताया गया है, प्रमोटर ऑफ सूफिज्म बताया गया है. तो भैया बुक के हिसाब से मान लीजिए आप प्रमोटर ऑफ सूफिज्म है, प्रमोटर ऑफ ह्यूमैनिटी है ये. देन आफ्टर दैट वी केम ऑन टू लाइफ इन द चिश्ती खानकाहा. चिश्ती खानकाहा में खानकाहा क्या होती है उसके बारे में हमें पता चला. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज खानकाहा, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रोल ऑफ शेख इन दैट खानकाहा. फिर शेख से जुड़कर प्रैक्टिसेस क्या होती थी उस पर हमने रोशनी डाली. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग
this, we came on to languages and communication related to Sufis, ठीक है. Then after that we came on to the relation of Sufis with the state in which they used to reside upon, ठीक है. उसके बाद हम किस पर आए? उसके बाद हम आए 9th टॉपिक पर, यानी कि अब लास्ट में हम आ गए थे इस चैप्टर के. दैट वाज न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डाइसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. भाई नॉर्दर्न इंडिया के अंदर डिवोशनल, आप कह सकते हैं कि आस्था और श्रद्धा का एक नया रूप सामने आया. कुछ और कवि और कुछ और पोएट्स और राइटर्स ऐसे आए जिन्होंने डिवोशन टुवर्ड्स गॉड को एक डिफरेंट डेफिनेशन दी, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी और कास्ट. वन वाज कबीर. कबीर में हमने इनका इंट्रोडक्शन लिया था, और फिर हमने ये भी देखा था कि काफी पोएम्स उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी थी, जिसमें कि हमने द संत सभा बाय निर्गुणा पोएट, उनकी जो मतलब आप कह सकते हैं कॉम्पोजिशन है, उनको अलग अलग टाइम के अलग अलग पोएट्स ने, अलग अलग राइटर्स ने कन्वर्ट किया है. सेकंड इज उलट बंसी, ठीक है. थर्ड आई थिंक इस्लाम के अंदर काफी वर्ड्स उन्होंने दिए, वेदांतिक ट्रेडिशंस के अंदर से काफी वर्ड्स उनकी आपको पोएम्स में मिल जाएंगे, जैसे अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन. इस्लाम का अल्लाह, हजरत, खुदा, पीर, ये सब शब्द मिलेंगे आपको. यौगिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग शब्दा, शून्य, ये सब मिलेंगे आपको. नाउ कमिंग ऑन टू डाइवर्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज. तो मैंने आपको आई थिंक कल बताया था, बट स्टिल नॉट टुडे वी विल डिस्कस इट. कि ऊपर तक जहां तक मैंने आपको कबीर जी के बारे में पढ़ाया है दैट इज ओके, बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि कबीर जी की कुछ पोएम्स के अंदर मोनोएथिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है, या बहुत ज्यादा उसको आई थिंक आप कह सकते हैं कि सही बताया गया है, और पॉलीएथिज्म को गलत बताया गया है. अब देखिए, अगर आप किसी चीज को सही ठहरा रहे हैं तो किसी चीज को सही ठहराने के लिए उसके रेफरेंस में किसी चीज को गलत बताने की तो कोई जरूरत नहीं है आपको. और वो भी तब जब वो एक डिफरेंट प्रैक्टिस से बिलोंग करती है और दूसरी डिफरेंट प्रैक्टिस से बिलोंग करती है. कबीर जी ने अपनी काफी या कुछ पोएम्स के अंदर ये किया है. उन्होंने मोनोएथिज्म मतलब सबका मालिक एक वाली फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए, जो इस्लाम में कही जाती है, उन्होंने हिंदू पॉलीएथिज्म को अटैक किया है उन पोएम्स में, और मूर्ति पूजा को भी अटैक किया है. अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आप डिसाइड कीजिए. कि इस्लाम की मोनोएथिज्म को उन्हें अपनी पोएम्स में अगर ग्लोरीफाई करना था, तो उन्होंने उसके ग्लोरिफिकेशन को चार चांद लगाने के लिए हिंदुइज्म की प्रैक्टिस को, ये जिसको हम पॉलीएथिज्म कहते हैं, हम इतने देवी देवताओं को पूजते हैं या हम मूर्ति पूजा करते हैं, उस पर उन्होंने अटैक किया. आज तक मुझे पता नहीं चला है दैट व्हाई द पीपल सेज दैट हिंदूज डू आइडल वर्शिप. ठीक है, अगर हिंदूज आइडल वर्शिप करता है तो मुझे बताइए इस दुनिया में कौन से धर्म और सो कॉल्ड प्रैक्टिस हो जो सबसे ज्यादा इस तरह की बात कहते हैं दैट हिंदूज डू आइडल वर्शिप. मुस्लिम्स कहते हैं. मैं मुस्लिम से यही कहना चाहता हूँ कि आइडल वर्शिप अगर हिंदू करता है तो आप क्या करते हैं? सबसे बड़े बड़े मकबरे पूरी दुनिया के आपके हैं, सबसे बड़े बड़े मरकज आपके हैं, सबसे बड़ी बड़ी मस्जिदें आपकी, तो सबसे बड़े बड़े मठ तो आपने बना रखे हैं, सबसे बड़े बड़े आइडल्स ऑफ गॉड तो आपने बना रखे हैं, और आप कहते हैं भैया कि आइडल वर्शिप हिंदू करता है. हिंदुओं के इतने बड़े बड़े मंदिर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे. जितना एरिया ओवरऑल रिलीजियस प्लेसेस में मस्जिदों का है पूरी दुनिया में, इतना तो भाई साहब दूसरे धर्म के किसी धर्म स्थल का है ही नहीं. तो अब इनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए दैट व्हाट इज एक्चुअली आइडल वर्शिप अकॉर्डिंग टू देम. मस्जिद अकॉर्डिंग टू देम डज नॉट कम्स इनटू आइडल. When we praise our God, I think by putting a picture in front of us and I think doing namaskar to it and I think uh, offering giving our offerings to it, तो उनको लगता है हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं. तो वो कौन कितना सही है कौन कितना गलत है ये डिसाइड आपका करने का काम है. एग्जाम्पल टू, others use the Sufi concept of zikr and ishq, love for remembrance of Hindu god names नाम से. मतलब अब आप देखिए, एक तरफ तो आप इस्लाम के मोनोएथिज्म को प्रमोट करने के लिए हिंदूज के पॉलीएथिज्म को और आइडल वर्शिप को अटैक कर रहे हैं, ठीक है. जबकि कुछ पोएम्स के अंदर आपने क्या किया है, कुछ पोएम्स के अंदर सूफी भाषा में आपने, सूफी भाषा में मतलब अब आप देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जबकि दूसरी तरफ कबीर जी ने क्या किया है, जो सूफी कॉन्सेप्ट हैं जिक्र और इश्क, इश्क को लव बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये जो जिक्र और इश्क की जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने काफी हिंदू गॉड नेम्स लिए, लाइक कृष्ण जी की बहुत उन्होंने तारीफ की है, राधा की बहुत तारीफ की है, ठीक है, शिव पार्वती की तारीफ की है, पुंडरीकाक्ष लक्ष्मी की तारीफ की है, जिसे हम कह सकते हैं नाम सिमरन. ये उनका पूरा आई थिंक आर्टिकल ग्रुप का नाम है. अब ये भाई आप ये डिसाइड कीजिए कि वेदर इट इज हिपोक्रेसी और वेदर इट इज कन्वीनियंस एज पर हिज थॉट्स, ये तो आप डिसाइड कीजिए. बिकॉज एक तरफ आप इस्लाम को प्रमोट करने के लिए, मोनोएथिज्म को प्रमोट करने के लिए हिंदूज के पॉलीएथिज्म और आइडल वर्शिप को अटैक कर रहे हैं. दूसरी तरफ आप सूफी कॉन्सेप्ट जिक्र और इश्क, जो आई थिंक काफी मेलोडियस कॉन्सेप्ट होते हैं इस्लाम में, जो मोहब्बत की बात करते हैं,
उस मोहब्बत को वेरीफाई और डिफाइन करने के लिए आप हिंदुओं के पता नहीं कितने भगवानों की प्रेम कहानियों को लिखते हैं उन पोएम्स में, और उनकी प्रेम कहानियों को रेफरेंस बना के, उनकी प्रेम कहानियों को रेफरेंस बना के आप पता नहीं कितनी और मोहब्बत के शगुफे छेड़ते हैं। आप पता नहीं कितना अलग तरह का प्यार और प्रेम और इश्क डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यू डिसाइड दैट दिस इज हिपोक्रेसी, या यू डिसाइड दैट वो जो है वो सही तो कर रहे हैं, सर एक तरफ ये कर रहे हैं तो एक तरफ वो कर रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है भाई दूसरी तरफ अगर वो सूफी कॉन्सेप्ट जिक्र और इश्क का यूज करके भगवानों के देवताओं और देवी देवताओं को अमर कर रहे हैं अपनी कविताओं में, तो फिर वो भाई उन्हीं देवी देवताओं के नॉ एग्जिस्टेंस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? Why they are, I think, why he is putting a question mark. First of all, he is putting a question mark on the idol worship and polytheism. यानी कि इतने देवी देवताओं को क्वेश्चन भी वही उठा रहे हैं, फिर उन्हीं देवी देवताओं की कहानियों को वो अपनी पोएम्स में अंदर पोएम में जिक्र कर रहे हैं उसका, एंड डिफाइनिंग द लव बिटवीन देम लाइक राधा कृष्ण। बहुत सबसे ज्यादा अगर राधा कृष्ण के बारे में लिखा है तो वो इस्लामिक पोएट्स ने ही लिखा है, सूफी पोएट्स ने ही लिखा है। यानी कि आप समझ सकते हैं, द रिलीजन विच सेज दैट आइडल वर्शिप एंड पॉलीथिज्म इज द बिगेस्ट फॉल्टर एज एनी पार्ट मतलब पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, उसी धर्म के लोगों ने सबसे ज्यादा राधा कृष्ण की कहानी को आई थिंक मेमोयर या ग्लोरीफाई अपनी कहानियों में, पोएम्स में, राइटिंग्स में किया है, इवन पेंटिंग्स में किया है। Now next point is there is an uncertainty of that all above was composed by Kabir or not, for which the scholars went under crude analyzation of language, culture and every possible attribute to study it. Out of which at least it became crystal clear that Kabir is and was the greatest inspiration till date for those who preferred question the religion in search of divine. अब सवाल ये आ गया कि काफी स्कॉलर्स और काफी फिलोसोफर्स इस बात पे आपस में भिड़ गए। वो बोले कि भाई कोई भी आदमी अगर इस तरह की चीजें लिखेगा तो इतना कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेगा? एक तरफ अगर कोई आदमी पॉलीथिज्म की प्रैक्टिस को गलत बता रहा है, आइडल वर्शिप को गलत बता रहा है, और दूसरी तरफ फिर उन्हीं पॉलीथिज्म के अंदर कई देवी देवताओं का जिक्र अपनी कहानियों में, अपनी प्रेम कहानियों में, और आई थिंक अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियलिस्टिक स्टोरीज में कर रहा है। तो काफी फिलोसोफर्स इस बात पर अनसर्टेन थे कि दोनों तरह के जो ये आर्टिकल्स हैं, दोनों तरह के जो कॉम्पोजिशन हैं, ये कबीर ने ही लिखे हैं या नहीं लिखे। इस बात को क्लियर करने के लिए काफी स्कॉलर्स अंडर क्रूड एनालाइजेशन, अंडर क्रूड स्क्रूटनाइज गए। उन्होंने बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज किया चीजों को। स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है? सर्च करना, रिसर्च करना, खोदना, चीजों को डिग आउट करना। तो आई थिंक उन्होंने काफी क्रूड डिगिंग की। आफ्टर क्रूड डिगिंग दे वेंट ऑन टू एनालाइज every aspect of the poems, of the writings and of the compositions related to Kabir. लैंग्वेज की उनकी क्या थी, उस पूरी लैंग्वेज का उन्होंने इतिहास, लेगेसी सब कुछ पढ़ा, कल्चर को स्टडी किया। उसके अलावा हर पॉसिबल एट्रीब्यूट जो कबीर से जुड़ी चीजों को समझाने में आसानी कर सकती थी, वो हर चीज पढ़ी गई। अब इतना पढ़ने के बाद ये क्लियर हुआ हो या ना हो कि भाई ऊपर की चीजें कबीर साहब ने ही लिखी हैं या ना लिखी हैं, लेकिन इतना जरूर क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि दैट कबीर अपने ज़माने तक, यानी कि जब तक कबीर आए थे, तब तक कबीर से बड़ी कोई इंस्पिरेशन नहीं था, जो किसी भी धर्म पर सवाल उठाने में हिचके नहीं। यानी कि इनका कहना था कि कबीर वाज़ द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ राइटर्स, इन टर्म्स ऑफ पोएट्स, जिन्होंने हर रिलीजन पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया इन सर्च ऑफ डिवाइन। क्योंकि उनका सीधा मतलब था कि आप डिवाइन को तलाशो, और डिवाइन को तलाशने का रास्ता रिलीजन वो नहीं मानते थे। उनका मानना नहीं था दैट थ्रू द पाथ ऑफ रिलीजन यू कैन सर्च डिवाइन। उनका मानना था कि रिलीजन को भूलोगे तभी डिवाइन की सर्च में आप जा सकते हो, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन अटेम्प्ट टू सर्च डिवाइन, आफ्टर विच ओनली यू कैन अटेम्प्ट टू गेट डिवाइन। तो इनका सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर क्वेश्चन हिस्ट्री में आता है कि कबीर साहब हिंदू थे या मुस्लिम थे? ये भी एक सवाल है साहब, देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, crystallization of his ideas with the Sufi and the yogic traditions in Awadh, present Uttar Pradesh, through dialogue led to the claims on his legacy by several groups. अब देखिए, वो आदमी ऐसे थे कि उन्होंने इस तरह की चीजें दी हैं दुनिया को कि लोग एक्चुअली सभी क्लेम कर गए कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, लाइक सी। उनके आइडियाज की जो क्रिस्टलाइजेशन थी, उनके आइडियाज के जो फिल्ट्रेशन था, उनका आइडियाज की जो ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें दोनों ट्रेडिशंस दिखाई देते थे। सूफी ट्रेडिशंस भी दिखाई देते थे, भक्ति ट्रेडिशंस भी दिखाई देते थे, और यौगिक ट्रेडिशंस भी दिखाई देते थे। और स्पेशली जो अवधी भाषा में उन्होंने इतनी सारी कॉम्पोजिशंस लिखी हैं, जो अवधी मतलब उत्तर प्रदेश आज का जो है वो उस टाइम अवध कहलाता था। तो उन्होंने डायलॉग के थ्रू इतनी सारी चीजें उसमें मेंशन की हैं कि भाई आप खुद समझिए
कि इसीलिए क्या है, स्पेशली अवध के लोग उनकी लेगेसी पे अपना क्लेम करते हैं, और अवध में कोई एक ग्रुप ऐसा क्लेम नहीं करता, बहुत सारे ग्रुप खड़े हो जाते हैं कि कबीर साहब तो हमारे कम्युनिटी के थे, कबीर साहब हमारी कम्युनिटी से थे, कबीर साहब ये थे, कबीर साहब वो थे। ठीक है जी। नाउ सोर्स अब आप कहोगे इन सब चीजों की सोर्स कहाँ है सर, जिससे हमें ये पता चलता है कि कबीर साहब ये थे, कबीर साहब पे इतने क्लेम्स लोगों ने किया है। तो इसका सोर्स हैगियोग्राफीज है, बायोग्राफी ऑफ अ सेंट। हैगियोग्राफीज का मतलब होता है अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोग, अलग अलग बुद्धिजीवी लोग, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स बायोग्राफी लिखे किसकी, सेंट की, संत। अब ऑटोबायोग्राफी आप उसको नहीं बोल सकते ना, बिकॉज उन्होंने खुद भी लिखी है। तो हैगियोग्राफीज आप इसलिए बोलेंगे दैट समबडी गॉट इंस्पायर्ड टू राइट अपॉन समवन। तो वो हैगियोग्राफीज काफी लिखी गई थी, तो उन्हीं को पढ़ पढ़ के आई थिंक हमें पता चलता है भाई साहब कि सेवरल ग्रुप्स स्पेशली इन अवध आल्सो claimed about the legacy of Saint Kabir, related to Kabir from the 17th century after 200 years of his death by many। और बड़ी विडंबना की बात है कि 17th सेंचुरी यानी कि नियर बाय वो 14-15 सेंचुरी के पोएट हैं, और 17th सेंचुरी के अंदर उनकी लेगेसी पे क्लेम किया गया, यानी कि उनके मरने के नियर बाय 200 साल बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये तो हमारे थे और ये तो हमारे थे। अंडरस्टूड। अब आप कहोगे सर इतनी सारी आप बात कर रहे हैं दैट देयर वर न्यूमरस हैगियोग्राफीज where we can see that where we can treat them as a source on the basis of which we are saying that कि Kabir belonged to I think Awadh, and I think several groups of Awadh also claim that the legacy of Kabir is straight away belonging to us। तो आपने सर कहा कि इसकी सोर्स बहुत सारी हैगियोग्राफीज हैं जो अलग अलग राइटर्स ने उनकी लिखी है। मैंने कहा हाँ भैया। तो आपने सर ये भी कहा कि 15th सेंचुरी के सेंट है, 17th सेंचुरी में इन पर क्लेम लगने स्टार्ट हुए कि ये हमारे थे, हमारे थे। उनकी लेगेसी पर क्लेम 17th सेंचुरी में हो। मैंने कहा यस बिल्कुल। आफ्टर 200 years of his death he was being claimed as the person of this religion, this community, that community। अब वो क्लेम हुआ तो 200 साल बाद। आप कहोगे सर एक आध एग्जाम्पल दीजिए उसका, वो मैं आपको कल दूंगा। आई थिंक फॉर टुडे इट इज कंप्लीट। Kindly students, all the students come on to